हम्म।
Assalamu alaikum everyone. Can you hear me please? Thank you very much for the feedback. How's everything? How are your classes going? I'm hoping to see you soon, right? How many of you are actually looking forward to come to campus for the classes? And how many of you think that it is good here online, staying home? What do you say? Nobody wants online here. I can see that with your replies. Almost there's none. We as teacher, of course, मेरी जितनी टीचर से बात होती है, they also want to come to the campus. Of course, there's no match to the class environment and the things that can happen in a classroom. Yes. Yes, no, rightly pointed out by Uzair, the only thing that is good in online class is that it can be recorded. Okay. All right, so can you see the screen, please? Good. So who would be replying me, because we'll be covering this today. So see how friendly we have been, that we have covered the first lecture and actually the third lecture. So that is our pace, and the honeymoon period is over this week, and we'll be putting the pressure on the accelerator now, and we'll be moving a bit faster. So what you're required to do is that you should come prepared to the classroom. And for that, you have the book available, and all of you must be on Google Classroom by now, right? All of you must be on Google Classroom, right? Because all the lecture will be there, the lecture recording and everything is there. So the book is already uploaded there, so you can go about it and see that. Okay. Who can reply me? What is vision? Let's have a 5-minute quiz. What is vision? Suddenly no reply. बुक का नाम, जो बुक अपलोड हुई है उसका नाम जाके पढ़ लें. The aim to do something, the goals we set. गूगल क्लासरूम का कोड ये जो अभी हमारी स्क्रीन थी इसकी शुरू में लिखा हुआ आ चुका है, आप अपने किसी भी दोस्त से पूछ लें. या 727 के साथ अच्छा नहीं हुआ, I understand, लेकिन nothing is lost here. You can recover it up. एबिलिटी टू थिंक, ठीक है भाई, सबको पता है विजन क्या होता है. तो आंखें बंद करके कितनों को नजर आता है डाउन द रोड 30 इयर्स किसके घर में किसके घर में नहीं, कोई और आपके घर में रह रहा होगा. ये बताइए कि वेयर यू सी योरसेल्फ डाउन द रोड 30 इयर्स, आंखें बंद करके. कौन सा घर है, गाड़ी चला रहे हैं, कौन सी चला रहे हैं, नजर आता है? ये नजर आना बहुत जरूरी है. शायद कुछ लोग आपको बोलेंगे कि इस तरह नजर आने से क्या फर्क होता है, लेकिन यही तो फर्क है, क्योंकि जो आप देख सकें वही उसी को आप अचीव करने की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह. ठीक है भाई. और लीडरशिप क्यों चाहिए हमें इसलिए लीडरशिप चाहिए क्योंकि हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते. तो वी वांट पीपल अराउंड अस टू मोटिवेट अस, है ना, टू पुश अस. अतः हमें रोने के लिए भी कंधा चाहिए हार के वक्त, और जीत के वक्त हमें ताली मारने के लिए भी हाथ चाहिए, हाई फाइव, यू नो. सो लीडरशिप
so that we have people around who are convinced with us. और last but not the least is the motivation. तो motivation कि भाई हम ये जानते तो हैं हमें चाहिए क्या, लेकिन उसको पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको पाने के लिए हम क्या करें. डू वी हैव द इनफ फ्यूल. ये बिल्कुल ऐसी बात है, घर से निकले यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, रास्ता भी पता है, मंजिल भी पता है, लेकिन गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है तो कैसे जाएंगे. आज की हमारी क्लास जनाब होगी 1:45 तक. बहुत अच्छा है यार. सवाल ये है कि ऊंचे ड्रीम देखना. अरे ड्रीम तो ऐसा देखो, अपने आप को देख के ड्रीम ना देखो, वो ऊपर वाले को देख के ड्रीम देखो. थिंक बिग, आस्क बिग, ठीक है ना. ऑडियो बहुत लो है. रियली? देख लीजिए अब्दुल्ला काजिम, आपके पास कोई इशू ना हो. ओके पीपल, यू आर लिसनिंग टू मी. ओह यस, एनिमीज का तो नहीं पता, बट द रिसर्च से पता नहीं, ये बात मुझे बोलनी चाहिए आप लोगों के सामने, यानी बोल देते हैं कि डोंट शेयर योर प्रॉब्लम्स विद एनीवन बिकॉज it will not make a difference for 5% people. Don't share your problems with anyone because it will not make a difference for the 5% of the people, and the rest 90% would be actually happy to see you in problem. ठीक है, तो अब ये फ्रेंड कौन है कौन नहीं है इसका भी तो एक मसला ही है ना. ठीक है, सो ये भी एक लंबी डिबेट है कि who's actually a friend and who's actually a foe. आपने सुना होगा ना, दोस्त होता नहीं है रात मिलाने वाला. ठीक, तो चलें यहाँ तक बात हो गई. अच्छा, वो जो हमने एक एग्जाम्पल की थी बिल्लू, बाबर और अहमद वाली, उसमें आप लोगों ने तय किया था कि भाई अहमद का अपने विजन तक पहुंचने का चांस, गुड हेल्थ का चांस सबसे ज्यादा है. तो आपने ऐसे क्यों बोला था? रिमेंबर दैट एग्जाम्पल? क्योंकि उसका डाइट प्लान अच्छा था. हाँ, क्योंकि वो डिटेल में जानता था कि उसे क्या चाहिए. तो उस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला था कि इट्स नॉट इनफ टू से गुड हेल्थ बिकॉज इट्स वेग. इट्स नॉट इनफ टू से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा. ठीक है, सो अनस, मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूँ. आप लिखिए कि आपकी क्या कंफ्यूजन है. तो इट्स नॉट इनफ टू से कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा. तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा एज इफ कि मुझे मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजीज ये आती होंगी, मुझे वेब एप्स पे ये आता होगा, मुझे डेटाबेस टेक्नोलॉजीज ये आती होंगी, यूजर इंटरफेसेस मेरे ये होंगे. यू नो, क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स कि जो कोई भी देख के बता सके कि वो हुआ या नहीं हुआ. सिर्फ ये बोल देना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो जिस दिन डिग्री मिल गई, चाहे 2 GPA पे मिल गई, आप बन गए. इसी तरह सिर्फ ये बोल देना कि आई नीड गुड हेल्थ, तो बगैर कुछ ये मेरा जैसा हाल होगा आपका क्वारंटाइन, और इट्स नॉट गुड, राइट. तो उस छोटी सी एग्जांपल से हमने ये देखा था कि विजन में और शेख चिल्ली के ख्वाब में फर्क क्या है कि विजन वुड बी प्रिसाइज. विजन वुड बी बेस्ड ऑन क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें सही या गलत साबित किया जा सके. यहां तक बात समझ आ रही है? Okay. Can I get a 1 for this, people? हाँ भाई, एक सामने लिखा सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस कोर्स को लेके. वो सारा बताएं उनकी क्या कंफ्यूजन है. हम तो ऐसे कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हम तो ऐसे गप्पे शप्पे लगा रहे हैं नहीं, लेकिन हम वाकई पढ़ रहे हैं और हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं.
ये वो चीजें हैं जो ना सिर्फ आपको बल्कि आपके आने वाली जनरेशन को भी काम आनी है, क्योंकि जो चीजें आप इस उम्र में सीख रहे हैं वो आपने अपनी सिबलिंग्स को, यंगर सिबलिंग्स को और अगली जनरेशन को बहुत अर्ली सिखानी है, 12, 13, 14 में सिखानी है। जी सर। अनस साहब, जो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज नोन टू अस, ये तो अभी प्रीएम्बल भी पूरा नहीं हुआ ना, तो इसलिए कॉन्सेप्ट शायद आपको पता हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का फ्रेमवर्क यकीनन आपके पास नहीं, और यकीनन वी ऑल आर वीक, सही है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क हो कि ये जो चीजें हम जानते हैं, देखिए इल्म का कोई फायदा नहीं है उस वक्त तक जब तक उस पर अमल ना हो, सही है। मोहम्मद मेसम, आप वही 727 वाली आईडी में है ना, तो आपको लिंक शिंक आ जाएगा, डोंट वरी। और मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था अनस कि इनका उस वक्त तक फायदा नहीं है जब तक उस पर अमल ना हो ना, और हम सबको वो मोटिवेशन चाहिए होती है टू अप्लाई आवरसेल्फ ना, तो वो फ्रेमवर्क हम चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए जिससे हम अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकें। पेपर से निकला मेरे भाई, है ना, पेपर छोड़ दे, बाकी पेपर दे लेना, यहाँ के पेपर की टेंशन न ले। यहाँ तो मैं आपको बोलूंगा भाई ये 150 पेज है, इनसे पढ़ लो, कुछ भी पूछ लूंगा, इससे बेड टाइम रीडिंग बुक, है ना। तो बिल्कुल पेपर मार्क्स वार्क्स बाकी कोर्सेज के लिए सोच लीजिए, यहाँ तो आपने बेड टाइम रीडिंग कर ली इस बुक की तो विल गेट थ्रू। हाँ, अगर आप किताब ही पढ़ने से गुरेजा रहे तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। क्या ख्याल है भाई, बात ठीक है पीपल? और ओके, ठीक है। चले भाई, आज हम एक नया किताब मैंने अपलोड कर दी है सारे, डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चंस, यू ऑल शुड बी पार्ट ऑफ द गूगल क्लासरूम। और अभी मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूं, आप लोग प्लीज एक दफा फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ये भाई लिखे हुए हैं आपकी गूगल क्लासरूम का कोड। अब आप देखिए कि आपकी कौन सी क्लास आईडी है और उसके सामने जो कोड लिखा हुआ है उसको अपने पास सेव कर लीजिए, अपने जीमेल से लॉग इन करिए, गूगल पे जाइए और इन पे जाके अपने लॉग इन कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, वेल डन। नो नो नो, ये तो हमारे 1.5 घंटे का 1.25 घंटे का सेशन होता है ना, हम इंशाल्लाह 1:45 खत्म कर देंगे। हाँ, उसको चेंज कर देना। अच्छा, वहां पे 12:55 आ रही है आपको, ओके ओके ओके, वो मैं चेंज करवाता हूँ, सही है। चलें, अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है, नथिंग हैज लॉस्ट, वी वर जस्ट recapping the things. No problem with the attendance, सही, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं आता। चलें जी, आगे पढ़ लें यार प्लीज, ठीक है। अच्छा जी, चलें पीपल, लेट मी हम आमतौर पे जो क्लास ले रहे हैं वो 12:30 से 1:45 तक ले रहे हैं, और आप लोग इसी वक्त तक अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आप सबके लिए कंफर्टेबल है 12:30 से 1:45 तक की क्लास? ठीक है, चलें जी, नाउ हम आज की क्लास के कंटेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि आप लोगों ने मुझे मैसेज में जवाब देना है। मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपके एक दोस्त को दरख्त पे चढ़ा हुआ देखा है,
तो मैं ये चाहता हूं कि आप यहाँ पे उसका नाम लिख दें चैट बॉक्स में। हाँ, नाम आने शुरू हो गए भाई। माज, रजा, यासिर, अहमद, आयशा, फातिमा, हमजा, दाऊद, अली, समीर, मैसम, ताहा, साकिब, महमूद, हुरैन, मिसम, इखलाक, महमूद, हमेरा, फजल, काशी, रिजवान, फाइज, अली, रमीन, राफे। ठीक है भाई, सबको पता चल गया। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए जी, सवाल मैंने ये पूछा था कि मुस्तकिम भी हो गया। सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर मैं ये कहूँ आपसे आके कि मैंने आपके एक दोस्त को बाहर सड़क पे दरख्त पे चढ़े हुए देखा है, तो आप किसका नाम लेंगे? तो आपने बता दी। चलो, लेट मी आस्क अनदर वन। मैं आपसे आके कहूँ कि यार आज मैंने वो जो होता है ना क्लासिकल रोड साइड का फड्डा देखा है ना, 100 गाय जैसे मैंने तुम्हारे साथ देखा है, ही मे बी योर फ्रेंड। नाम लिखें। क्या क्या ये वही आदमी जो दरख्त पे चढ़ा था? हाँ, नहीं ना? ओके, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ पीपू कि ये जो दोनों लोग हैं, इनके मुतालिक आपकी जो परसेप्शन है वो अलग अलग, यानी कि द वन हु इज द फड्डेबाज इज डिफरेंट एंड द वन हु इज नॉट सो फड्डेबाज इज डिफरेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये जो आपका परसेप्शन है अपने दो दोस्तों के मुतालिक, ये आपके एक्सपीरियंस जो उनके साथ रहा उससे आया, ऐसा ही है ना? कैन आई गेट अ वन फॉर दिस? ठीक है। अच्छा, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आपके दोस्त ने आपको फोन किया और कहा कि यार लाला, मैं तुझे पिक करता हूँ 5 o'clock। ठीक है, तो आप जो है 5 बजे, अम्मा ने कहा तुम्हें जाना नहीं उसके साथ, तो आपने कहा कि उसने 5 बोला है तो मैं उठूंगा ही 6 बजे, क्योंकि वो तो 6:30 से पहले नहीं आएगा। लेकिन अगर आप में एक और दूसरा दोस्त आपसे कहता है कि I'll pick you at 5, तो आप 4:55 पे रेडी हैं। क्या ऐसा होता है? तो जब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पहले वाला बंदा था उसके साथ आपने ये एक्सपीरियंस किया कि ही इज ऑलवेज लेट, और कुछ दोस्त होंगे जो पंक्चुअल होंगे और कुछ दोस्त नहीं होंगे, तो हम उनसे अकॉर्डिंगली बिहेव कर लेते हैं। ये बात समझ आ गई भाई? चलिए, वेरी गुड। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं, मेरा कोई दोस्त पंक्चुअल नहीं है, आप पंक्चुअल हैं, या आपके दोस्त भी आपके मुतालिक यही कहता है? अच्छा जी, अब जरा गौर से समझिए जो मैं कह रहा हूं। हम ये कह रहे हैं, चलें हम क्या समझना चाहते हैं उससे पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स और देता हूँ। अच्छा भाई, आई नीड यस फ्रॉम दोस्त कि इस वक्त 1 बजे जिनसे कहा जाए कि भाई ग्राउंड में आ जाओ, मैच है, इट मे बी क्रिकेट, फुटबॉल, इट मे बी एनी स्पोर्ट्स आउटडोर, तो आप में से कितने लोग हैं जो इस वक्त 1:30 बजे धूप में तैयार हो जाएंगे आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए? अच्छा, लॉट्स ऑफ नो, ओके, फ्यू यस। अच्छा, यस, नाउ द यस आर कमिंग। वो कह रहा मेरा तो रेगुलर है भाई। ठीक है, नेवर, अच्छा नेवर भी है यहाँ पे काफी। ठीक है भाई, तो ये जो सवाल था ये आपकी अपनी जात से मुतालिक था, और इससे पहले जो सवाल थे ये किससे मुतालिक थे?
ये आपके दोस्तों से मुताल्लिक थे। एक्चुअली होता क्या है, अब जरा गौर से सुनिएगा। एक्चुअली ये होता है कि हमारी अपब्रिंगिंग, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमारी अपब्रिंगिंग, वो अपब्रिंगिंग हमारे पहले घर में होती है, अम्मा अब्बा के हाथों, बड़े बहन भाइयों के हाथों, देन स्कूल 3 साल की उम्र से, और देन सोसाइटी, एंड देन मोहल्ला, एंड देन ओवरऑल माशरा। ये सब हमको एक पैकेज बनाते हैं। जिन हालात में हम रह रहे हैं वो सब हमें मिलके क्या बनाते हैं, पैकेज बनाते हैं। और एज ए पैकेज हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर तय हो जाता है। आप यूं समझिए कि जैसा अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है और उसको रेड कलर के कॉन्टेक्ट लेंस लगा दिए जाए और उससे 5 साल बाद ये पूछा जाए कि बेटे व्हाट्स द कलर ऑफ द स्काई, तो क्या बोलेगा? रेड। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस ये किया। इसी तरह हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे बड़ों के हमारे साथ ताल्लुकात, जिन हालात में हम बड़े होते हैं, वो हमको स्कूल्स में हमारे साथ क्या होता है, वो हमको क्या लगा देता है, कॉन्टेक्ट लेंस लगा देता है। और उसी कॉन्टेक्ट लेंस से हम अपने आप को देखते हैं, उसी कॉन्टेक्ट लेंस से हम अपने दोस्तों को देखते हैं, और उसी कॉन्टेक्ट लेंस से हम दुनिया को देखते हैं। ये बात समझ में आती है? तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपका वो दोस्त के रात को 2 बजे जब आप हैदराबाद से मछली खा के कराची आ रहे थे, तो राइट इन बिटवीन, आउट ऑफ नोवेयर आपका टायर फ्लैट हो जाए, तो you will have one that friend who can even laugh in that situation. हाँ, वो ऐसा क्यों कर पाता है? ठीक है ना, वो ऐसा इसलिए कर पाता है कि उसकी अपब्रिंगिंग ने पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इट कैन गो बोथ वेज, उसको मुश्किल हालात को हैंडल करना सिखा दिया। तो जो ये हमारी अपब्रिंगिंग हमें कॉन्टेक्ट लेंस लगाती है, इसके हमारे ऊपर बड़े पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेट मी शेयर फ्यू फनी एग्जांपल्स। भाई देखिए, आपने स्कूल में पहले दिन प्री नर्सरी में जब रेस हुई थी, तो आपने ये सीख लिया था कि भाई जो पहले आता है उसको एक बड़ा गुडी जार मिलता है, या उसको 2 टॉफियां मिलती हैं, और सेकंड आने वाले को 1 मिलती है। तो और फिर जो हर साल आपके रिजल्ट आते रहे, तो उससे आपको पता चलता रहा, खुदा ना खास्ता इफ यू आर वन ऑफ दोस्त के जिसका कोई कजन वजन भी उसी के एज ग्रुप का था, तो सारी जिंदगी आप एक कंपैरिजन में रहे। ठीक है जी, और आपको ये मुस्तकिल बताया जाता रहा कि उसको देखो। हाँ जी, तो उससे आपने क्या सीखा? उन्होंने कहा भाई कुछ करो ना करो, इसको दुनिया में होना अच्छा नहीं है मेरे लिए, है ना। यस, एनीवन, वाइट ऑलवेज से पप्पो खाला भी कह सकते हैं ना। तो आप समझ रहे हैं कि इन कंटिन्यूअस कंपैरिजन, तो आपने सीखा कि भाई दुनिया में इज्जत उसकी है जो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और अगर मैं कुछ सख्त एग्जांपल दे दूं, एंड होपफुली योर पेरेंट्स वोंट बी लिसनिंग, तो अम्मा भी अपने उस बच्चे को ज्यादा पूछती है ना जो ज्यादा कमा के लाता है। हाँ, होता है ना। मुझे कुछ नो चाहिए इस पे। I get very few no, तो आप लोग भी रियलिस्टिक हैं, ठीक है ना। तो नहीं, इसमें क्या शक है कि whosoever is sharing the responsibility will get more respect, of course. मतलब there's no harm in it.
ठीक है, तो पीपल आर हियर डिफेंडिंग। चलो अच्छा, हम तो यहाँ पे बात एब्सोल्यूट तो कोई बात ही नहीं है ना इस कोर्स में, इसमें तो पर्सपेक्टिव्स ही डिस्कस होने। ठीक है, यानी कि ये बात ऐसे नहीं है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज 0-1 होती है तो इसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। मेरी तो हर बात को आप रिफ्यूट कर सकते हैं। हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि हमारी अपब्रिंगिंग हमें एक कॉन्टेक्ट लेंस लगा देती है जिससे हम अपने आप को देखते हैं। जैसे अभी मैंने जब आप लोगों से पूछा तो आपने तो कुछ लोगों ने कहा कि जनाब मैं सर धूप में क्या आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए तैयार हूं, कुछ ने कहा नहीं। तो ये आपका अपने मुतालिक पैराडाइम है, ये आपका अपने मुतालिक पैराडाइम है जिससे आप अपने आप को देख रहे हैं, यानी कि वो कॉन्टेक्ट लेंसेज जिससे आप अपने आप को देख रहे हैं, फिर जिससे आप दूसरों को देख रहे हैं। ठीक है जी, तो पैराडाइम क्या है कि आपके जो बिलीफ थ्रू सम एक्सपीरियंस, आपका जो बिलीफ अपने मुतालिक, अपनी सोसाइटी के मुतालिक, अपने दोस्तों के मुतालिक बन चुका है, वो पैराडाइम है। आप अक्सर बोलते हैं ना यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो दैट्स व्हाट योर पैराडाइम अबाउट द सोसाइटी। आपका अपने आप से ये कहना कि मैं ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता, दैट इज योर पैराडाइम अबाउट योरसेल्फ। आपका ये कहना कि आपका फला दोस्त ये दरख्त पे चढ़ सकता है और फला दोस्त सड़क पे खड़ा होकर लड़ सकता है, दैट इज योर पैराडाइम अबाउट योर फ्रेंड्स। और बिल्कुल इसी तरह आपके अतराफ जो लोग होंगे, आपके कजिन्स, एंड यू कैन इंक्लूड एनीवन यू बी नोइंग, ठीक है। सर कितना जरा मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। हाँ, कैन यू प्लीज पुट इट अगेन। अच्छा जी, हाँ, तो हम बात ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ पैराडाइम, ठीक है जी। सच एज आपके वो दोस्त जिनके सामने से कोई लैम्बोर्गिनी गुजर जाए, कहीं रूफटॉप पूल देख लें, कहीं होम थिएटर देख लें बहुत अच्छा, तो दे वुड जस्ट बी टॉकिंग अबाउट दैट फॉर द कमिंग वीक, है ना, ऐसा है। तो ये लोग हो गए जिनकी जिंदगी को मैं कह सकता हूँ ये स्टफ सेंटर्ड है। फिर कुछ लोग होंगे जो पेरेंट सेंटर्ड होंगे, मतलब दोस्तों का कैसा ही कोई प्लान ना बना हुआ हो, हमारे बोला खबरदार हमें जाना है खाला क्या, तो बस फौरन दोस्त को फोन, तो भाई मैं नहीं आ रहा, नहीं अच्छा। अब उसके रीजन अम्मा की बात मानना थी या कोई और रीजन था ये मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली समीर, यू आर राइट, है ना। तो इसके बाद आती है बात, फिर कुछ लोग होते हैं फ्रेंड सेंटर्ड, बस भाई जान दे देनी है दोस्त पे, ठीक है, ना अब्बा को देखना है ना बड़े भाई की सुननी है, बस जो दोस्त ने कह दिया भाई जिंदगी अपनी। ये कौन से लोग हो गए? अनस करम में दोनों जगह चला जाता। आखिर में आ गए स्पाउस सेंटर्ड, इस बेचारे की तो हमारे माशरे में कोई इज्जत ही नहीं ना दोस्तों में। हाँ भाई तूने तो छोड़ दिया दोस्तों को, ठीक है, और अगर शादी के बाद है ये सिलसिला तो जोरू का गुलाम है ही डिक्लेयर्ड हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो आपके ख्याल में इन चारों में से कौन सा बंदा बेहतर है? स्टफ सेंटर्ड होना बेहतर है, पेरेंट सेंटर्ड होना बेहतर है, फ्रेंड सेंटर्ड होना बेहतर है, या स्पाउस सेंटर्ड होना बेहतर है? अब चूंकि मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ 10-15 साल से, तो एग्जैक्टली नो कि आप लोग क्या बोलेंगे, अनलेस के माशरे में कोई ड्रास्टिकली चेंज ना आ गया हो। मोस्ट ऑफ यू वुड से कि पेरेंट सेंटर्ड होना चाहिए। हाँ, माजूर रहमान ने जबरदस्त बात की भाई, सेल्फ सेंटर्ड है भाई हम तो, बेहतरीन।
मुबीन साहब कह रहे हैं कि भाई अल्लाह सेंटर्ड होना चाहिए। ये दो अलग अलग डायमेंशंस हैं, सेल्फ सेंटर्ड और अल्लाह सेंटर्ड। और फैक्ट तो ये भी है ना कि हम मुख्तलिफ वक्त पे मुख्तलिफ हो जाते हैं, है ना, ऐसा भी तो होता है ना। एट टाइम्स वी आर सेल्फ सेंटर्ड, एट टाइम्स वी आर पेरेंट सेंटर्ड, है ना। भाई वो बच्चे जो अम्मा अब्बा को टाइम नहीं भी देते हैं, अगर पता चले अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है तो वहीं बैठ जाते हैं, कमरे से भी नहीं हिलते। सी, तो इट कैन गेट बोथ वेज, है ना। इनफैक्ट इट कैन गेट ऑल द वेज। कभी आप स्टफ सेंटर्ड हुए हुए हैं, कभी आप पेरेंट सेंटर्ड हुए हुए हैं, कभी आप स्पाउस सेंटर्ड हुए हुए हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो अगर मैं आप लोगों की बात मान लूं तो इसमें से सही क्या होगा? तो क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि a combo और a hybrid solution would be सही? ऐसा है? सिचुएशन देख के डिसीजन करें। ये जो हमारे मुल्क का हाल है ना, ये सिर्फ ये सिचुएशन देख के डिसीजन वाला है। इसको उर्फ़े आम में कहते हैं नजरिया जरूरत, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, कि जी जरूरत थी इसलिए मुल्क पे कब्जा कर लिया, जरूरत थी इसलिए ये कर दिया, जरूरत थी इसलिए ये कर दिया। लेकिन कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए ना, कि भाई आप उतनी जरूरत हो, आप ये नहीं कर सकेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि आदमी को क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल सेंटर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल सेंटर्ड। यानी कि इफ इट इज इन बिटवीन अम्मा एंड बेगम, so you are neither on Amma side or on the Begum side. You are standing on the principle, and on the basis of principle, whosoever is correct, आप उसके साथ हैं। लेकिन ऐसे आदमी को सोसाइटी उठ से कि ये जोरू का गुलाम है ना। लेट मी शेयर एन एग्जाम्पल। अगर आप ही के कोई कजन हैं, ठीक है जी, सेकंड वाइफ साइड, ओके, आप ही के कोई कजन हैं जो बहुत खानदान में सब जिनकी मिसालें देते थे कि भाई सच अ वंडरफुल किड, ठीक है जी, अच्छी जगह से पढ़ा, अच्छी जॉब की, पेरेंट ओरिएंटेड एंड ऑल। तो जब इन साहब की शादी हुई तो इन्होंने अम्मा अब्बा से ये कहा कि भाई देखें, ऐसा है कि आई एम थिंकिंग कि मैं घर के करीब ही कोई दूसरा घर ले लूं, and I want to start my life there. मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैंने ऐसा नहीं किया था। Still live with my mother, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कोई ऐसा कह रहा है तो मास्टर क्या बोलेगा उसको? जी हाँ, है ना, सेल्फिश। मतलब वो बोलेंगे भाई बेगम के आने से पहले ही तू तो बदल गया यार, है ना। लेकिन अब आपसे कहा गया जाके उसको समझाएं, ठीक है, आप क्या क्या समझाएंगे जाके? मैं लोग क्या कहेंगे, हम तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो आप जैसे पढ़े लिखे आदमी जिसको अब VLM पता है, जिसको बात करने का तरीका पता चल गया है, आप क्या कहेंगे जाके? सर ये क्या किया तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे माँ बाप ने 27 साल पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया और वैसे ही पता वेतन आ रही है तो तुम घर छोड़ रहे हो, व्हाट द हेल, ये वो, है ना। लेकिन अगर आप उससे ये पूछें भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो वो आपको बताए कि जनाब इट्स प्रिंसिपल ओरिएंटेड अप्रोच, और मेरे प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि आई वुड टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जिस डिवाइन आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं तो उसमें ऐसा है कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में बेगम को नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से मैं करीब ही एक घर ले रहा हूँ, ठीक है, और आई एम नॉट shying away from my responsibility, and I'll be visiting my parents regularly, and if required I may be staying there as well, but as a whole
I need a separation as it is stated in the divine philosophy as well. अगर ऐसी वो कोई बात करता है, मैं इस फिलोसफी को सही या गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात करता है तो हमें फिर समझ आता है कि ये उसकी पसंद नापसंद नहीं है, वो तो बात एक प्रिंसिपल की बेस पे कर रहा है और उस प्रिंसिपल को हम जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। इसकी अगेंस्ट में अगर कोई कहता भाई मेरी मर्जी, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों के? कैन आई गेट अ 1 फॉर दिस? ऑलराइट, थैंक यू। तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो या तो आपकी डिवाइन फिलॉसफी है जिसको आप मान लें, ठीक है, या फिर जो जनरली एक्सेप्टेड चीजें हैं। आपको याद होगा ना, हमने ओवरऑल फ्रेमवर्क में बात की थी वैलिडेशन प्रिंसिपल्स की। ये उन्हीं की बात हो रही है कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं, कैसे आप चीजों को सीधा कर सकते हैं, और वो कौन से ग्राउंड्स होंगे जिसकी बेस पे आप ये कर पाएंगे। अटेंडेंस मैं एक साथ ले लूंगा, आप लोग अटेंडेंस वगैरह की टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। आई टेक ए स्क्रीनशॉट आपस, और वो उसकी बेस पे आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल। अब हम जल्दी से एक दूसरे कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सनल बैंक अकाउंट। पर्सनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि बैंक अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे ये बताइए आप लोग। तो बैंक अकाउंट ये होता है कि जहां पे आप अपने पैसे वैसे रख सकें, है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप पैसे ना रखें और पैसे निकलते रहें? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ खास किस्म के अकाउंट होते हैं जिन्हें ओवरड्राफ्ट अकाउंट कहते हैं, और आमतौर पे ऐसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को कैश लाइन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और बैंक वाले अपने जो भी आपके रिक्वायर्ड होता है, लाख, 5 लाख, 10, 20 लाख, वो आपके अकाउंट में डाल देते हैं, और आप उसमें से जितना यूज करते हैं, आप उसमें से जितना यूज करते हैं उतने का इंटरेस्ट आपको देना होता है। जब आप वापस कर देते हैं तो वो इंटरेस्ट देना बंद हो जाता है। तो ये एक तरह का अकाउंट है जिसमें बगैर आपके डिपॉजिट किए विड्रॉल हो सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा अकाउंट नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि 99% ऑफ द टाइम्स क्या होता है, 99% ऑफ द टाइम्स यू नीड टू डिपॉजिट बिफोर योर विड्रॉ। ये बात तो सब मान रहे। तो जिस तरह बैंक अकाउंट होता है फाइनेंशियल, इसी तरह हमारा पर्सनल बैंक है, और इसमें हमारी फीलिंग्स जमा होती हैं, ठीक है। और आप यूं समझिए कि हम, हमारे साथ एक जग लगा हुआ है, एक बाल्टी लगी हुई है सपोज, और हम वक्तन फवक्तन उसमें क्या डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, सो दैट कि जब हमें पानी की जरूरत पड़े तो हम उससे पानी निकाल लें। बात समझ में आ रही?
चलें बाल्टी और जग नहीं समझ आ रहे तो आप समझें हम सबके साथ अपना अपना फ्रिज एसोसिएटेड है, और हम उस फ्रिज में रात में पानी की बोतल अगर रख देंगे तो सुबह हमें ठंडा पानी मिलता रहेगा, ये जब हमें चाहिए होगा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम फ्रिज में पानी की बोतल नहीं रखेंगे, वो फ्रिज जो हमारे साथ लगा हुआ है, तो हमें जब जरूरत होगी ठंडे पानी की तो नहीं मिलेगा। ये बात समझ आती नहीं आ रही? ठीक है, इसकी एक एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, आप जा रहे थे, 2-4 आपके दो डॉगी आ गए वहां पे, ठीक है। अब आप अपनी टांगों से ये चाहें कि वो आपको इस सिचुएशन से निकाल सकें, तो आपने अपनी टांगों से कहा भाई भागो, तो आपकी टांगे आपसे कह रही है यार ऐसा ना करो। When was the last time you actually invested on us? कब आपने डिपॉजिट किया, कब आप वॉक की आपने, कब आपने रनिंग की, जॉगिंग की? अगर आप ऐसा महीना 2-3 से कर रहे होते तो शायद इस वक्त हमें वो स्ट्रेंथ होती कि we may have taken you away from these jobs, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस वक्त विड्रॉल की जरूरत पड़ी उस वक्त हमें रियलाइज हुआ कि हमने डिपॉजिट ही नहीं किया था, तो विड्रॉ कैसे हो? ये बात समझ आती? लेट मी शेयर अनदर एग्जाम्पल। आपसे किसी ने कह दिया कि अचानक किसी तकरीब में कि आप सामने जाइए और लोगों से बात कीजिए, तो अगर आपने ये पब्लिक स्पीकिंग के गट्स को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को, और पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं, आपका जनरल नॉलेज बेहतर होना चाहिए, आपकी रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, आपको अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना चाहिए, आपने लोगों का इंटरेस्ट भी बरकरार रखना है, आपने आई कांटेक्ट करना है, बॉडी लैंग्वेज है, आपके अल्फाज का चुनाव एंड एवरीथिंग, है ना। तो अगर आपने इन चीजों को अपने अंदर रखा है तो ही आप उस वक्त जाके खड़े हो जाएंगे ना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर पाएंगे, वरना तो अब आप ये अपने आप से कहें कि मैं इस वक्त अपने आप ये कर पाऊं और आपने डिपॉजिट कुछ किया नहीं है तो विड्रॉ नहीं हो पाएगा। दुनिया के अच्छे बिजनेस स्कूल्स जो हैं, और हमारे यहाँ भी मैंने पढ़ा है आईबी से, आई नो लम्स में भी ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। यानी कि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया, आपने इंटरव्यू दे दिया, देन देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन, और वो सिर्फ इसीलिए होता है कि हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट yourself in front of the people. Do you have the enough guts? Do you have the natural skill set of developing and presenting an argument, है ना। तो ये it's a very acceptable measurement criteria, ठीक है। टोटल फीलिंग से मतलब यही है कि जनाब आप अपने बिहेवियर को और फीलिंग्स को कहीं एक जगह रख पाएंगे तो कंट्रोल कर पाएंगे ना। अभी तो मैं फिजिकल बात कर रहा था कि आप रीडिंग करेंगे और लोगों से बात करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसी तरह मैं बात कर रहा था कि अगर आप फिजिकल फिटनेस पे डिपॉजिट करेंगे तो विड्रॉल हो पाएगा। इसी तरह भी फीलिंग्स हैं कि हम जो कुछ सोच पा रहे हैं और जो महसूस कर पा रहे हैं, हमें उसे भी चैनलाइज करना है ना। और अगर हम उन फीलिंग्स को और एटीट्यूड को और बिहेवियर को चैनलाइज नहीं करेंगे तो वी मे एंड अप लूजिंग ऑल दैट। तो ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, ये कैसे होती हैं? ये इस तरह होती हैं कि हम क्या कर पाए, what we can do is that कि we need to have a balance। तो अब आप सोचेंगे कि अच्छा जी फीलिंग तो कैसे, मैं कोई भी अच्छा काम करके आपको अच्छा लगता है। हम तो वो लोग हैं कि किसी को 2 रुपए देख के ऐसा सीना चौड़ा होता है कि लगता है कि दुनिया फतह कर ली, है ना। तो doing something good, helping someone makes us feel good। तो ये पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, और हमें ये देखना होगा कि हमारे अपनी जात में डिपॉजिट्स कैसे होंगे और विड्रॉल्स कैसे होंगे। अब जो डिपॉजिट्स हैं वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दी, एक में मैंने सॉफ्ट स्किल्स की बात की, एक में मैंने फिजिकल फिटनेस की बात की। तो देयर कैन बी अदर्स
एज वेल, यानी कि अगर आप अपने आप से स्मॉल प्रॉमिसेस करें और पूरा करें तो ये तो आपका अपने ऊपर एतमाद बढ़ेगा। बी कंसिडरेट, ख्याल करने वाले बने, अपना भी ख्याल करें, औरों का भी ख्याल करें, लोगों को माफ़ करें, सच बोलें, अपनी स्किल्स में इजाफा करें और अपने टैलेंट्स को इम्प्रूव करें। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपकी क्या टैलेंट है। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे तो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट का डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, और जब जरूरत होगी इंशाल्लाह व्हेन द टाइम वुड कम, तो आप बड़े इत्मीनान से उसको विड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, पर्सनल बैंक अकाउंट, पीबीएस पर्सनल बैंक अकाउंट। तो बिल्कुल हम बात सिर्फ फीलिंग्स की नहीं कर रहे हैं, हम तो उससे भी आगे जा रहे हैं ना, हम तो स्किल्स भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं। देखिए, व्हेन वी लर्न समथिंग तो हमारी फीलिंग्स भी तो बेहतर ही होती है ना। एक अच्छी किताब खत्म करके वी फील गुड, इजंट इट? ऐसा ही है ना। तो ग्राउंड के 3 चक्कर लगा के वी फील गुड, तो हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारा नॉलेज, ये सब कुछ जो है हमारी फीलिंग्स को इम्प्रूव करता है। अब ये तो हो गए डिपॉजिट्स, और साथ में लेकिन अगर आप अपने आप से किए हुए वादे पूरे नहीं कर रहे, आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं सुबह उठूंगा, नहीं उठ पाते, आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं हेल्दी डाइट लूंगा, नहीं ले पाते, आप रोज अपने से किया हुआ वादा पूरे नहीं कर पा रहे, सेल्फिश हो रहे हैं, अपने आप से नाराज हैं, जाहिर है जब जब वो पूरे नहीं हो पाते आपके टारगेट्स, यू आर अनहैप्पी विद योरसेल्फ, यू डोंट लाइक योरसेल्फ, सो देन यू बिकम हार्श विद योरसेल्फ, और फिर आप अपने आप को इलाम तान शुरू कर देना, डिसऑनेस्ट हो जाना, ये सब कुछ क्या है, दिस इज टेकिंग अवे फ्रॉम यू। तो ये क्या हो रहे हैं, ये विड्रॉल्स हो रहे हैं। तो चलें, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होंगी और विड्रॉल्स होंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम डिपॉजिट किए रखें, ताकि जब भी विड्रॉल हो तो वो कम से कम टेक्स नथिंग अवे फ्रॉम मी, मतलब इतने डिपॉजिट तो होना कि विड्रॉल हो के कुछ चीजें बाकी रह जाए। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही नेगेटिव में आके खड़े हो जाए। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? और ये डिपॉजिट्स हर तरह के हैं, ये डिपॉजिट्स फिजिकल हैं, फिटनेस के हैं, ये डिपॉजिट हमारे ब्रेन सेल्स के हैं, ये डिपॉजिट्स हमारी फीलिंग्स के हैं, ये डिपॉजिट स्किल्स के हैं, ये डिपॉजिट्स टेक्निकल स्किल्स के हैं, पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हैं, हर चीज। बात समझ में आ रही है आप तमाम लोगों को? वंडरफुल। अच्छा जी, मेरे ख्याल से इस वक्त हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोग मौजूद हैं, तो पहले मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूं, मुझे तो 3 मिनट दीजिए। अच्छा, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस वक्त आप अपने चैट बॉक्स में मुझे अटेंडेंस भेज दें, बस अपनी आईडी और अपना नाम प्लीज। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना आईडी और अपना नाम दोनों लिखते हैं, ठीक है? और अगर आपके कोई दोस्त वगैरह इस वक्त मौजूद नहीं है जिस वक्त तक कनेक्टेड थे, तो आई एम प्रीटी ओपन, आई ट्रस्ट पीपल, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली उनका भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन जिन्हें आपने जेन्युइनली आज क्लास में देखा है, ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, ट्रस्ट कर रहा हूं, एंड आई ऑलवेज ट्रस्ट माय स्टूडेंट्स। प्लीज अपना आईडी और नाम लिख दीजिए, क्योंकि वो एक खास जगह से ही चैट को वो कॉपी करेगा स्टाफ। तो अगर आपने पहले लिखा हुआ है और अब नहीं लिख रहे तो ऐसा मत कीजिएगा, जिस वक्त मैं आपसे कहा करूं बस उस वक्त लिख दिया कीजिए।
जी जी, अगर आपने लिख दिया तो 100% मुझे मिल जाएगा, इसकी टेंशन मत लें, बस लिख दी। और अगली क्लासों से हम ये काम क्लास शुरू होने के 5 या 7 मिनट बाद करेंगे, तो इसलिए प्लीज बी विजिलेंट। ठीक है जनाब, पर्सनल बैंक अकाउंट, आई एम होपफुल कि आप सबने लिख दिया। बस मैं क्लोज करता हूँ चीजों को। पर्सनल बैंक अकाउंट जिस तरह मैंने आपको क्लैरिटी दी, बिल्कुल इसी तरह आप यूं समझें कि रिलेशनशिप बैंक अकाउंट भी है। यानी कि जो बाल्टी आपको मैं कह रहा था आपके साथ लगी हुई है, वो यूं समझें कि सबके साथ लगी हुई, और अगर हमें किसी से कुछ चाहिए, पानी चाहिए, तो हम उसकी बाल्टी में जब पानी डालते रहेंगे तो एक वक्त आएगा जब हमें जरूरत होगी तो हम उससे ले पाएंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसकी बहुत ही फनी एग्जांपल्स हो सकती हैं, सही है ना। हर रिलेशनशिप में आपने क्या करना है, आपके पास पानी है और आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है, और हर किसी की बाल्टी में आप अपना पानी डालते जाइए, और उसके बाद जब आपको पानी चाहिए होगा तो उस रिलेशनशिप से निकल आएगा। आप यूं समझें फ्रिज है ना, तो आप इस बात को समझें कि अगर आपने रात को पानी की बोतल रखी है तो सुबह पानी की बोतल ही निकलेगी, पेप्सी नहीं निकलेगी। ये बात कितनों को समझ आती है? ठीक है, तो अगर हमने पानी की बोतल रखी है तो पानी की बोतल निकलेगी। अगर हमें पेप्सी चाहिए सुबह को तो हमें क्या रखना होगा, पेप्सी ही रखना होगी। सही है, तो दैट्स आवर रिलेशनशिप वर्क। तो दुनिया तो इसी तरह चलती है। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज कि आप जो डिपॉजिट करेंगे वो ही विड्रॉल हो पाएगा। सिर्फ 2 रिलेशनशिप ऐसे हैं कि जिसमें हम डिपॉजिट उतना नहीं करते जितना विड्रॉल हो रहा होता है, और चूंकि विड्रॉल हो रहा होता है तो हम ये समझते हैं कि हाँ इधर से डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, और ये सिर्फ उस रिलेशनशिप की ब्लेसिंग है। ये कौन से रिलेशनशिप्स हैं? ये वो रिलेशनशिप्स हैं कि जिसमें आपका अल्लाह से जो ताल्लुक है, दैट इज दैट रिलेशनशिप के जिसमें हम बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं कर पाते, और बचपन से लेकर आज तक, और जब तक हम यहाँ पे हैं हम विड्रॉ करते रहें। ठीक है ना। और दूसरा रिलेशनशिप ऑफ कोर्स हमारा है अपने पेरेंट्स के साथ, जिसमें हम ये समझते हैं कि हम बहुत डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर रियली वीक एट। मतलब एक लिटमस टेस्ट ये हो सकता है ना कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली सैट विद योर पेरेंट्स, यू एक्चुअली आस्क योर मदर हाउ वाज योर लाइफ व्हेन यू आर माय एज, व्हाट वर योर ड्रीम्स, what you went through in me getting me reach here where I am. When we had that talk with our parents, when we actually asked our father what he went through, है ना, what he used to do when he was of our age. ठीक है, तो अगर ये बात आप कर पा रहे हैं तो यार आप मतलब मैं तो ऑलरेडी आपको सलाम करने को तैयार हूँ। ठीक है, और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये कर, ठीक है ना, हमें इन 2 रिलेशंस का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यही 2 रिलेशंस ऐसे हैं कि जिसमें डिपॉजिट के बगैर विड्रॉल है। ठीक है जी, तो अल्लाह से भी यही ताल्लुक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इबादत, इट्स अबाउट मामलात, ऑलवेज हैविंग अ चेक ऑन आवरसेल्फ that we are being watched। और ठीक है, इंसान है, गलती होगी, रोज गलती हो, रोज बोलेंगे यार माफ करें, आगे बढ़ें, लेकिन रोज कर लें। इन दोनों ताल्लुक को बहुत बहुत जरूरी है कि
यही वो दो ताल्लुक हैं जिसमें डिपॉजिट के बगैर विड्रॉल है, वरना तो कोई ऐसा मामला है ही नहीं, डिपॉजिट करेंगे तो विड्रॉल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये चीज आज खत्म हो जाती है इंशाल्लाह। और किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए प्लीज, और फिर अगली क्लास से हम थोड़ा सा तेज बढ़ेंगे। ठीक है जी। और जो बुक आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर हुई भी है, तो आई अर्ज यू कि आप उसको क्या कर सकें, ये गूगल क्लासरूम के लिंक आपके सामने मौजूद हैं सर, तो वो जरूर किताब को देख लें और फर्स्ट हैबिट को पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि अगली क्लास में हम वो डिस्कशन करेंगे। नहीं, अगली क्लास में तो यूनी ओपन नहीं है, अगली क्लास तो हमारी ऑनलाइन ही होगी। फिर देखते हैं कि क्या होता है इंशाल्लाह। जी अटेंडेंस हो चुकी है, सबने अपनी अटेंडेंस लिख के मुझे भेज दी। आप मुझे एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, इफ यू हैव एनीथिंग तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त अटेंडेंस ना भेजें, वो जो आप भेज चुके हैं वो काफी है, वॉज ओनली रिक्वायर्ड वन टाइम। नहीं, मंडे से यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो रही, अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे लगता है कि ये वाला कोर्स तो ऑनलाइन ही चलेगा, क्योंकि इस वक्त भी आई सी अक्रॉस इसमें तो कोई 130 तक बच्चे हो पाते हैं, तो 130 बच्चों को अगर एसओपीसी के साथ बिठाना है तो ग्राउंड चाहिए होगा पूरा। तो मेरे ख्याल से ये कोर्स शायद ऑनलाइन ही चले, बाकी कोर्सेज आपके ऑन कैंपस शुरू हो जाए। लेट्स सी व्हाट वी एंड्स अप विद। मेरी ईमेल आप बस उस पर चले जाए ना, जब गूगल क्लासरूम आप कनेक्ट कर लेंगे तो यू कैन ऑटोमेटिकली सेंड मी एन ईमेल। Perhaps 1st of October, I'm not sure about it. Of course you'll get a message if it opens. जी अब्बास, क्या आंसर करना है मुझे आपको? जी असाइनमेंट्स वगैरह सब आपको मिलेंगे, कोई बात नहीं। आप अभी लिख दीजिए अपनी आईडी और पासवर्ड अब्बास, अगर आपने लिख दिया तो काफी। वंस यू ओपन वील ओपन, तो उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट ऑफिस से आप रब्ता कर सकते हैं। जी मेरा तो ये ख्याल है कि पेपर कैंपस पे ही होंगे। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कोई भी क्यूरी हो तो, अगर ऐसी कोई बात होगी तो आई शेयर माय कांटेक्ट एज वेल ओवर ईमेल। आज के लेक्चर कोशिश करेंगे कि आज दिन में हो जाए अपलोड। डोंट रश थिंग्स, चीजें सेटल हो जाएंगी, परेशान ना हो। बाकी कोर्सेज ठीक है सर? All right, wonderful. All right, people. Thank you very much. You have been a great audience. Or I'll catch you on coming Wednesday, inshallah. किताब पढ़ के आइएगा, फर्स्ट हैबिट आपने पढ़ के आनी है जिसका नाम है बीइंग प्रोएक्टिव। ओके, नो प्रॉब्लम। आप गूगल क्लासरूम में शामिल हो जाएं, लिंक्स मौजूद हैं जिनकी पहली क्लास है। किताब से फर्स्ट हैबिट पढ़ लीजिए, बी प्रोएक्टिव।
Thank you very much, people. Take very good care of yourself. Indeed, very good care of your parents, and stay connected with Allah Subhanahu wa Taala. और गलतियों की टेंशन नहीं लेनी है। 10,000 दफा गलती हो, 10,000 दफा अल्लाह को बोलेंगे यार माफ कर, टेंशन नहीं है। ओके, गलती की बेस पे अपने आप को दूर नहीं करना। रिमेंबर दिस। अल्लाह हाफिज।